Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the revision of book 1, and under this revision, we have completed the first two chapters, that is the end of the Cold War and then the disintegration of the USSR. And our third chapter, that is hegemony of US, that has been included in the second chapter only now in the revised syllabus, and we have discussed about that also. And now we will start our third chapter in the revised syllabus. The third chapter is new centers of power, which was earlier your alternative centers of power. And in this new center of power, we are going to study about some organizations, regional organizations like European Union, ASEAN, SAARC, and BRICS. And some important new centers of power. Some countries are also there as new centers of power, like India, China, Russia, and Israel. So, first of all, we must understand that after the collapse of the USSR in the year 1991, the whole scenario of the world politics has changed, and we find that the world shifted from bipolar to unipolar. The hegemony of US was established with the end of 1990, with the end of USSR, and in this regard, we have discussed the first Gulf War and all the problems which arose in Afghanistan. And now, what we find that on the one hand, there is supremacy of US, or we can say dominance of US or hegemony of US. But on the other hand, what we find that new centers of power are emerging in the world politics, which are very powerful, and we can say that they are not there to challenge the hegemony of US, but they are new centers of power, and we can say that in future we can move towards the multipolar world. There was one of the possibilities after the disintegration of USSR that the world may move towards the multipolar world politics. But at that time, the world did not move towards multipolar, but it moved towards unipolar. But आज के समय में हम देखें तो there are so many new centers of power, and these are very important players in the international politics. So they are important for us also as a student of political science. This is important for you. And in this regard, our first center of power, which we are going to study, is European Union. So this is very important for you, European Union. In this regard, you must understand, and we all have discussed all these things, that before the Second World War, the whole world was dominated by Europe. The continent of Europe, the countries of Europe, were the most powerful countries in the whole world, and there was, we can say, dominance of Europe over the whole world. And in this Europe, Britain was the most powerful. Other than Britain, Germany was also Germany, then France. These were the very powerful countries of Europe. But what we find ki, because of this Second World War, what happened that the power of Europe decreased.
substantially, and the condition of Europe became very bad. The economic condition, especially the effect of Second World War was such that the Europe, it changed from the continent of debtors to continent of creditors. जो कॉन्टिनेंट लोगों को डेब्ट देती थी, अदर कंट्रीज को उधार देती थी, उस कंट्री की, उस कॉन्टिनेंट की कंट्रीज की ये कंडीशन हो गई कि उनको क्रेडिट लेने की जरूरत पड़ गई. तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस हम कह सकते हैं कि यूरोप की कंडीशन बहुत ही खराब हो गई. एंड नाउ इट वाज अ क्वेश्चन बिफोर द कंट्रीज ऑफ यूरोप कि उन्हें अब फ्यूचर में क्या करना है, बिकॉज व्हाट वी सी दैट देयर वाज अ हाई लेवल ऑफ rivalry. High level of rivalry was existing between the powerful countries of Europe, and all these rivalries was there, still there. But now it was a question before the countries of Europe कि अब उन्हें फ्यूचर में क्या करना है. Do they want कि उस ओल्ड राइवलरी को कंटिन्यू किया जाए, हम अभी भी आपस में एक दूसरे के साथ लड़ें, या there was need of reconstruction of Europe, and we should move towards a positive concept of international relation. Instead of focusing on the rivalries, we should focus on reconstruction of Europe, and that reconstruction can be done only by going in a positive relationship. So this was a question before the countries of Europe, and we see that Europe, the countries of Europe, they decided that they must cooperate with each other. They must forget their old rivalries, and they should move towards achieving cooperation, and thus they will become a powerful continent once again. And in this direction, in this move, the role played by the most important role played by was the Cold War. After Second World War, एक तो consequence ये हुआ कि यूरोप के power कम हो गए, and the second consequence was कि there was emergence of two superpowers, that is USA and USSR, and there was ideological differences between these two countries, and there was rivalry, there was Cold War between these two countries, and this Cold War had a very great impact on the reconstruction of Europe. Europe, which was devastated by the Second World War, now it needed to be reconstructed, and in this reconstruction, Cold War played a very important role. How Cold War played the role? Because of Cold War, we have seen that the world was dividing into two blocks, the US bloc and the USSR bloc. And in this rivalry, both the superpowers wanted to increase the number of the countries under their influence. And इसी डायरेक्शन में काम करते हुए यूएस ने जो यूरोप के, जो वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज थी, उनको अमेरिका ने फाइनेंशियल हेल्प देने की स्टार्टिंग की फॉर द रिकंस्ट्रक्शन. एंड दिस फाइनेंशियल हेल्प जो दिया गया, इसको हम मार्शल प्लान के नाम से जानते हैं. ये मार्शल प्लान, it was the help, economic help, financial help provided by US to the Western Europe countries.
एंड साइड बाय साइड ये तो एक मार्शल प्लान इकोनॉमिक हेल्प के लिए हुआ, एंड इसी समय व्हाट वी सी कि नाटो वाज आल्सो established which was a collective military organization. तो इस तरह से यूरोप को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था क्योंकि अमेरिका was need was in need of more and more countries. उसको अपने इन्फ्लुएंस में जो कंट्रीज थे उनके नंबर बढ़ाने थे, और इसलिए उसने यूरोप को, वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज को हेल्प देना स्टार्ट किया. द फाइनेंशियल हेल्प वाज गिवन अंडर द नेम मार्शल प्लान. एंड व्हाट वी फाइंड कि मार्शल प्लान के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, दैट इज OEEC, Organization for European Economic Cooperation. This was formed under this Marshall Plan in the year 1948. Organization for Organization for European Economic Cooperation. It was established in the year 1948 under Marshall Plan. And what was the purpose for this organization? What was the purpose of this organization? The purpose was to channel the aid to the West European countries. जो कि aid आ रहा था US की तरफ से, उस aid को channelize करना इन यूरोपियन कंट्रीज के, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के लिए, कि किस तरह से वो उनको मिले, वो उनके हेल्प में जाए. तो उसको एड को चैनलाइज करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना. एंड व्हाट वी फाइंड कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है OEEC, इट बिकेम अ फोरम फॉर दिस वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज to start cooperation on the matters of trade and economic issues. तो क्या हो गया कि बना तो था ये इसलिए कि एड को चैनलाइज किया जा सके, उनका रिकंस्ट्रक्शन में जो भी फाइनेंशियल एड वाज गिवन बाय अमेरिका, दैट एड कैन बी चैनलाइज. बट एक्चुअली ये एक फोरम बन गया जहाँ पर कि यूरोप के, वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज थे, दे स्टार्टेड cooperating with each other on the matters of trade and economic matters. तो इकोनॉमिक और ट्रेड इश्यूज पे वो आपस में कोऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया इसी के साथ. एंड देन वी फाइंड कि 1949 में एक अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम था द काउंसिल ऑफ यूरोप. इन द ईयर 1949 दिस काउंसिल ऑफ यूरोप वाज established. This Council of Europe, it was an effort to bring political cooperation. जैसे ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना OEEC, इसका जो पर्पस था वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन था, इसका एजेंडा इकोनॉमिक था. बट ये जो 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप एस्टैब्लिश हुआ, दैट वाज फॉर पॉलिटिकल कोऑपरेशन, कि अब हमें सिर्फ इकोनॉमिक फ्रंट पे कोऑपरेट नहीं करना है, बल्कि हमें पॉलिटिकल फ्रंट पे भी कोऑपरेशन की नीड है. और इस तरह से धीरे धीरे जो ये एक फीलिंग थी कि हमें एक आपसी कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा नीड है, बिकॉज कंडीशन यूरोप की बहुत ख़राब हो चुकी थी. तो इस तरह से एक स्टार्टिंग होती है कोऑपरेशन की, जो कि अमेरिका की तरफ से स्टार्ट हुआ, इकोनॉमिक फ्रंट पे स्टार्ट हुआ, बट धीरे धीरे इट स्टार्टेड टू टेक द पॉलिटिकल फॉर्म आल्सो. और इसमें ये काउंसिल ऑफ यूरोप 1949 में बनता है. और इसके बाद हम देखते हैं कि एक पर एक कई सारे एफर्ट्स होते जाते हैं टुवर्ड्स अचीविंग द cooperation among the different countries of the
Western Europe. And in this direction, we will see that in the year 1951, six countries of Western Europe, like France, West Germany, Italy, Belgium, Netherlands, and Luxembourg, they signed a treaty, and by this treaty, what was established? They established European Coal and Steel Community. तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो सेटअप हो रहे हैं. ओके, द ईयर इज 1951 एंड इस साल में क्या हो रहा है, 6 कंट्रीज जो है वो मिलकर के क्या बना रहे हैं, ECSC. What is this ECSC? This is यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, जिसमें कि 6 कंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं. फ्रांस है, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, लक्समबर्ग, नीदरलैंड्स. तो ये सारे कंट्रीज ने मिलकर के हम कोल और स्टील के मैटर्स पे वो आपस में कोऑपरेट करने के लिए उन्होंने इसको बनाया. इसी तरह से फिर हम देखते हैं कि 1957 में एक फिर से नया डेवलपमेंट होता है और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनती है. यही 6 कंट्री जो थे, ये 6 कंट्रीज मिलकर के 1957 में EEC बनाते हैं. यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी. एंड इसी के साथ साथ एक और बनता है यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी. मतलब डिफरेंट इश्यूज पे द कंट्रीज स्टार्टेड टू कोऑपरेट. और इसमें ये 6 कंट्रीज जो थे इन्होंने लीड लिया. दे हैव स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ कोऑपरेशन. दे हैव स्टार्टेड द इनिशिएटिव टू कोऑपरेट विथ ईच अदर. तो इस तरह से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं और फिर वो रुकती नहीं है. हम देखते हैं कि एक पर एक न्यू डेवलपमेंट्स जो हैं वो होते जा रहे हैं टूवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, कि कोऑपरेशन जो है यूरोपियन कंट्रीज़ के वो बढ़ते जा रहे हैं. तो ये जो यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल बनता है, दैट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट. 1957 में जो 6 कंट्रीज़ ने आपस में बनाया, ये रोम में ये ट्रीटी हुई थी. एंड देन वी सी कि 1973 में कुछ और कंट्रीज भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं. जैसे अभी हम वी विल फोकस ओनली ऑन यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल. नाइनटीन 57 में यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल वाज established by Treaty of Rome. और उसके बाद इसमें कुछ in the starting there were 6 countries, and after that we find कि new countries started to join this EEC in the year 1973. इसमें कुछ नए countries जो हैं वो include हो जाते हैं, like डेनमार्क, आयरलैंड, यूके. ओके, 1973 में इनका आना हुआ. देन व्हाट वी फाइंड कि आफ्टर दिस, मतलब दोनों कोऑपरेशन साथ साथ हो रहा है. इकोनॉमिक फ्रंट पे भी वो कोऑपरेट कर रहे हैं एंड दे आर आल्सो कोऑपरेटिंग ऑन पॉलिटिकल फ्रंट. अब एक नया एफर्ट स्टार्ट हो जाता है बाय दीज यूरोपियन कंट्रीज, ये 6 कंट्री पहले वाले और 3 कंट्री बाद के, कि अब हम एक अपना कॉमन पार्लियामेंट की भी बात होने लगती है कि हम सबका एक कॉमन पार्लियामेंट होना चाहिए. एंड व्हाट वी सी कि 1979 में इलेक्शंस भी होते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए, जो कि एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट कहा जाएगा टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन. तो जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जिसमें पीपल टुक पार्ट इन दैट इलेक्शन. एंड देन अनदर डेवलपमेंट वाज आल्सो देयर कि फिर एक नई कंट्री 1981 में
ग्रीस जो है वो इसको ज्वाइन करती है। तो इस तरह से जैसे जैसे न्यू कंट्रीज ज्वाइन कर रही हैं, इसका मतलब क्या है कि जो पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ दिस यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल वाज इंक्रीजिंग, है ना। पावर बढ़ रहा है, इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तभी तो न्यू कंट्रीज उसको ज्वाइन कर रही हैं, और न्यू कंट्रीज को ज्वाइन करने से उसके पावर और भी बढ़ रहे हैं। तो इट्स अ साइकिल, जैसे जैसे न्यू कंट्रीज आती जा रही है, पावर और बढ़ती जा रही है, पावर बढ़ती जा रही है, और भी ज़्यादा कंट्रीज जो है वो उसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से 1981 में ग्रीस ज्वाइन करता है। देन 1985 का जो सेंगन एग्रीमेंट होता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट in the direction of cooperation among these countries of European Economic Council। इस सेंगन एग्रीमेंट से क्या होता है कि बॉर्डर कंट्रोल जो था वो खत्म हो जाता है। व्हाट इज बॉर्डर कंट्रोल? जैसे कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए हमें वीज़ा की नीड होती है, वी नीड वीज़ा इन ऑर्डर टू गो टू अनदर कंट्री। तो अब क्या हुआ इस सेंगन एग्रीमेंट से, जो कि 1985 में हुआ था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि वीज़ा की रिक्वायरमेंट को एंड कर दिया जाता है जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए सिर्फ। लाइक ये 6 कंट्रीज डेनमार्क, आयरलैंड, यूके एंड ग्रीस। अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना हो इन लोगों को आपस में, तो दे डोंट नीड वीज़ा, उनको वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमारा नेपाल के साथ ये हमारा अग्रीमेंट है कि वीज़ा की नीड नहीं होती है ना। तो उसी तरह से इन कंट्रीज ने आपस में ये 6+3+1 10 कंट्रीज ने आपस में अग्रीमेंट किया कि हमें वीज़ा की नीड नहीं होगी। और अगर कोई बाहर की कंट्री भी, बाहर के लोग भी, जैसे इंडिया से किसी को जा रहा है, अगर वो एक यूके का वीज़ा ले रहा है तो उसको हर कंट्री में जाने की परमिशन हो जाएगी, जो भी ईसी के मेंबर थे। इन द ईयर 1985 ये सेंगन एग्रीमेंट होता है। ये दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। एंड देन वी सी कि फिर से एक नया डेवलपमेंट होता है 1986 में। फिर से इसमें 2 नई कंट्री आ जाते हैं, स्पेन एंड पोर्टुगल जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। एंड देन इन 1990 में क्या होता है, देयर वाज अ मेजर डेवलपमेंट व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो, कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है। जो अभी तक जर्मनी वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी में बटी हुई थी, वी हैव सीन कि जो 6 फाउंडिंग मेंबर्स थे ईईसी के, उसमें एक कंट्री था वेस्ट जर्मनी, because Germany was divided. But now in 1990 के अक्टूबर में जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी एक हो जाते हैं। दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। मतलब जो कोल्ड वॉर के एंड होना दिखाई देने लगा, एंड तो वो हो रहा था पहले से, डिसइंटीग्रेशन हो रहा था यूएसएसआर का पहले से, बट वो दुनिया को नज़र आने लगा ओनली आफ्टर दिस इंटीग्रेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है। तो 1991 में 1990 में यूनिफिकेशन हो जाती है जर्मनी की। एंड देन वी सी कि फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है ये ट्रीटी। ये सारी जो ट्रीटीज हैं जो सेंगन अभी बताया, एंड देन मास्ट्रिक्ट जो बताने जा रहे हैं, दैट इज मतलब कि आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चंस में ये आ सकते हैं। ओके, तो 1992 के फरवरी को एक फिर से ट्रीटी होती है जिसको हम कहते हैं Maastricht Treaty in the year 1992। ओके, तो ये जो Maastricht ट्रीटी होती है, और इसी ट्रीटी से हमारे यूरोपियन यूनियन जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है। This is the treaty through which European Union was established in the year 1992. And then after this establishment of EU, European Union, फिर से और भी डेवलपमेंट्स होते हैं। लाइक 93 में एक सिंगल मार्केट क्रिएट हो जाता है। सिंगल मार्केट मीन्स क्या, कि जो मार्केट की बाउंड्रीज होती है, कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब ट्रेड होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो उस पर ड्यूटी लगती है। बट यहाँ क्या हुआ कि
एक ही सिंगल मार्केट हो गया, मीन्स कि जो ड्यूटीज लग रहे हैं वो बिल्कुल खत्म हो गए। एक कंट्री जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए, एक कंट्री से सामान बन के दूसरे कंट्री में इजीली जा रहा है, सिंगल मार्केट। तो ये यूरोपियन यूनियन को ये और भी ये चीज़ें क्या कर रही हैं, स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। एंड देन वी सी कि फिर से कुछ न्यू कंट्रीज 1995 में ज्वाइन करते हैं, लाइक ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन, और जितने कंट्रीज आते जा रहे हैं इसकी स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ती जा रही है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हम कहेंगे वो है यूरो, जो कि यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज की कॉमन करेंसी है, जिसको हम यूरो के नाम से जानते हैं, EURO। एंड ये यूरो जो है वो 2002 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। दिस इज इम्पॉर्टेंट, 2002 में यूरो जो है वॉज इंट्रोड्यूस्ड। बट ये जो यहाँ पर एक बात समझ लेना है कि यूरो जो आई, ये दैट वाज नॉट कंपल्सरी फॉर द मेंबर स्टेट्स टू एक्सेप्ट दिस करेंसी। वो चाहते तो इस करेंसी को अडॉप्ट करेंगे, चाहे तो नहीं करेंगे। तो इस तरह से 12 कंट्रीज जो थे, 12 मेंबर कंट्रीज, उन्होंने यूरो को इंट्रोड्यूस किया अपनी अपनी, मतलब वो दे एक्सेप्टेड यूरो एज देयर कॉमन करेंसी। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। फिर एक नया डेवलपमेंट होता है 2004 में, जबकि हम देखते हैं कि बहुत सारे न्यू कंट्रीज, देवर 10 इन नंबर्स। तो ये जो 10 न्यू कंट्रीज ज्वाइन कर रहे हैं 2004 में, ये कौन सी कंट्री है? ये वो कंट्री है जो कि अर्स्टवाइल USSR के मेंबर थे। USSR के जो रिपब्लिक्स थे, वो जो USSR का डिसइंटीग्रेशन होता है उसके बाद वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन जाते हैं, लाइक लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, ये सारे जो कंट्रीज थे। फिर ईस्ट यूरोप के जो कंट्रीज थे जो कि सोवियत ब्लॉक में थे, वो सारे कंट्रीज जो हैं यही 2004 में यूरोपियन यूनियन के मेंबर बनते हैं। तो अभी तक क्या हम देखें कि 1992 में जब यूरोपियन यूनियन स्टैब्लिश हुआ, उस समय तक यूरोपियन यूनियन वाज ओनली अ यूनियन ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। बट जब डिसइंटीग्रेशन हो चुका होता है, then all the countries of this erstwhile USSR, they went through a very painful transitional period, जिसको हम शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। तो वो सब जब कुछ हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है वहाँ पे, तब 2004 में दे ज्वाइंड यूरोपियन यूनियन। और इस तरह से यूरोपियन यूनियन की जो स्ट्रेंथ है वो और भी बढ़ती जा रही है। और देन 2007 में फिर से दो कंट्रीज, बुल्गारिया और रोमानिया जो है वो इसको ज्वाइन करते हैं, और नई कंट्रीज यूरो को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, कई सारे कंट्रीज, नॉट ऑल द कंट्रीज बट मेनी ऑफ द कंट्रीज। और फिर 2009 के दिसंबर में क्या होता है कि लिस्बन जो है वो दैट ट्रीटी कम इनटू फोर्स। फिर इस तरह से नए डेवलपमेंट्स होते जाते हैं, और 2012 में हम देखते हैं कि EU को नोबेल पीस प्राइज भी मिलता है। द होल ऑर्गेनाइजेशन was awarded this Nobel Peace Prize because it was a really great achievement in the direction of world peace। क्योंकि कल तक जो यूरोप दो पार्ट्स में बटा हुआ था, वेस्ट यूरोप, ईस्ट यूरोप, आज वो सारे के सारे कंट्रीज जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मेंबर दे आर वर्किंग। It was a really great achievement, and for that the organization was given this Nobel Peace Prize। And then 2013 में क्रोएशिया जो है वो 28th member of EU बनता है। And then a new development was also there कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में ये EU से हटने का जो प्रोसेस है वो एक स्टार्ट हो जाता है 2016 में, जिसको हम ब्रेक्सिट के नाम से जानते हैं। कि पहले से ही राइवलरी थी, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच की राइवलरी बहुत पुरानी राइवलरी थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट राइवलरी फ्रांस ने ब्रिटेन को एंटर होने में प्रॉब्लम क्रिएट किया था, वीटो पावर यूज कर देता था फ्रांस, जिसके कारण ब्रिटेन वाज नॉट एबल टू ज्वाइन EU। और जब उसने ज्वाइन किया उसके बाद भी एक तरह का वो एक जो डोमिनेंस वाली चीज़ थी वो ब्रिटेन की थी, और इस कारण से वहाँ के लोगों का सपोर्ट भी पूरा नहीं मिल पा रहा था। और
ब्रिटेन को हटने की बात होने लगी, ब्रिटेन ईयू को छोड़ने की बात होने लगी, ये 2016 में पहली बार इसके लिए ब्रिटेन में रेफरेंडम होता है। एंड इस रेफरेंडम में मोर देन 50% पॉपुलेशन जो थी वो डिसाइड करती है कि ब्रिटेन शुड एग्जिट फ्रॉम द EU, and this is known as Brexit. और आगे फिर और भी डेवलपमेंट्स होते हैं, we will discuss this in the next class.